Hello students, welcome to MDC Learning. I'm teaching in the standard TYBCom semester 6. Subject is financial accounting and the topic which we are learning is liquidation of company. Chalo, let's read the problem. This is problem number 8 and this is the last problem for this chapter. Now in the next video I'll start with the new chapter which will be the last chapter for the semester 6 also. Now let's read the last problem. The company following particulars related to the limited company which has gone into the liquidation. We are required to prepare liquidator's statement of accounts allowing for his remuneration 2.5% on asset realized excluding call money. Call money you are excluding it. 2% on the amount paid to unsecured creditors including preferential creditors. So you will be having 2% on unsecured creditors. So commission is on this two yellow, 2.5% on asset realized 2%. ये हम लोग ने इससे पहले भी किया है. Okay. The equity share 10,000, preference share of rupees 100 each. 50,000 equity share rupees 10 each fully paid up. The second lot was 30,000 equity share of rupees 10 each. Paid up value was rupees 8. That means 2 you can call up. Asset realized 20 lakhs, including the amount realized by the sale of security of partly paid up secured creditor. इसके अंदर partly paid up secured creditors is included. Preferential creditors is 50,000. Unpreferential creditors is 18 lakhs. Unsecured creditors is 18 lakhs. Partly secured creditors asset realized is 3,20,000 बट आपका है 3,50,000 यानी कि इस बार यहाँ पे भी शॉर्टफॉल है. नॉर्मली अभी तक हमने देखा था तो ये क्या हो रहा था, एसेट रियलाइज का वैल्यू ज़्यादा था, लाइबिलिटी कम था, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं टू सरप्लस. यहाँ पे शॉर्टफॉल है यानी कि जो अभी ये 30,000 कम पड़ रहा है वो दैट विल बिकम योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. Debenture holder having a charge of all the assets rupees 6 lakh. Liquidation rupees expenses rupees 10,000. Call on a call of rupees 2 per share on partly paid up shares were duly received except in the case of one shareholder owning rupees 1,000. यानी कि 29,000. देखो हमारे पास 30,000 शेयर होल्डर्स से 29,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, 1,000 ने नहीं दिया. Also calculate the percent of amount pay to the unsecured creditors to the total secured creditors. चलो we'll start it. सबसे पहले हमारे पास एसेट रियलाइज कितना आया 20. व्हाट इज हैपनिंग? सबसे पहले हम एसेट रियलाइज करेंगे. टू एसेट रियलाइज्ड. ओके, एसेट रियलाइज कितना हो गया है 20 लाख. जरा एक मिनट, आई डोंट भूल जाती हूँ मैं स्टार्ट करने से पहले. एसेट रियलाइज इज 20,000. करेक्ट, यही हमारे प्रॉब्लम में था ना. एसेट इंक्लूडिंग सेल ऑफ एसेट हम देखेंगे. ओके, उसके बाद हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहाँ पे था. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज रुपीज 10,000. सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बहुत सिंपल होता है, हम यहाँ पे डाल देंगे 10,000. आफ्टर दैट व्हाट इज देयर, इक्विटी शेयर होल्डर से 2 रुपीज़ हमने मंगाया, उसमें से 1,000 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया. सो टोटल मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स था 30,000. उसमें से 1,000 बंदे पर्सन ने नहीं दिया, तो कितना आया मेरे पास इंटू 2 रुपीज़, दैट कम्स टू 58,000. सो आई राइट हियर टू कॉल रिसीट. कॉल फ्रॉम equity share
holder received. How much I received? 58,000. ओके चलो अब हम आगे का चलते हैं. नाउ कमीशंस को कैलकुलेशन करना है. सो कमीशन का कैलकुलेशन विल बी डूइंग इट. ओके लेट्स डू द कमीशन कैलकुलेशन ऑल्सो. अमुक चीज़ें कमीशन के अंदर क्लियर कर दी है जो हमें प्रॉपरली बनानी है. तो फर्स्ट आ जाएगा कमीशन. Commission calculation. Now it is 2%. It is 2.5% of asset realized. चलो asset realized कितना था? 20 lakhs into 2.5 divide by 100. How much you are getting it? Yes, commission is coming to 1, 2, 3, 4, 5 into 2.5%. That is coming to 50,000. Yes, so this commission is coming to 50,000. अब कमीशन के बारे में और क्या बोला था? Yes, where is a commission entry? Where was the thing? Yeah, हमने एसेट रियलाइज पे 2% ऑन पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम डिबेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करेंगे. डिबेंचर्स होल्डर्स का पेमेंट है 6 lakhs. सो नाउ लेट्स मेक द पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर. यस, सो यू विल राइट हियर बाय डिबेंचर होल्डर. Yes, by debenture holders 6 lakhs. Okay, you are making a payment to debenture holders 6 lakhs. उसके बाद नाउ सी मेरे पास 20 lakhs है, उसमें से सिर्फ अभी 6 lakhs ही गया है. सो आई सी हाउ मच पेमेंट आई कैन डू. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी मैं 50,000 पेमेंट कर सकती हूँ. सो आ जाएगा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बाय preferential creditors. Yes, I am making a preferential creditors rupees 50,000. Now see, I am having a cash. Now money left out with me will be how much? Now see, मेरे पास 20,000 था. 20,000 नहीं, 20 lakhs 58,000 था मेरे पास. उसमें से मैंने 10,000 एक्सपेंसेस दिया. फिर माइनस किया मैंने 6 lakhs दिया. फिर माइनस किया मैंने प्रेफरेंशियल ये भी पेमेंट कर लिया 3,20,000 वो अलग से था. देन फिर मेरा ये रॉन्ग है कैलकुलेशन. इंक्लूडिंग था कि एक्सक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग मतलब ये पैसा नहीं था. ओके, तो आई विल बी राइटिंग पार्टली इसके पहले एक आना चाहिए बाय. ये इसके ऊपर जाना चाहिए बच्चों, मैंने गलती कर दी. ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जाना चाहिए था. बाय सरप्लस नहीं आएगा इस बार बिकॉज एसेट रियलाइज इज बाय एसेट realized is 3,20,000 less लोन. लोन कितना है बच्चों आपका इस बार? 3,50,000. दैट मीन्स यू आर हैविंग अ शॉर्टफॉल. शॉर्टफॉल है, कितने का शॉर्टफॉल है? 30,000 का. अब ये शॉर्टफॉल यहाँ पे आएगा. ओके, सो नाउ व्हेन आई एम सीइंग इट, नाउ लिसन, मैं ये जो कर रही थी मेरे पास
20,58,000 आया था, उसमें से 10,000 ये जाएगा, कमीशन जाएगा, फिर मेरा जाएगा -50,000 माई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब मेरे पास कितना बचेगा? नाउ लेट्स सी कितना बच रहा है मेरे पास। 20 lakhs, 20,58,000 माइनस माइनस 10,000 माइनस 6 lakhs माइनस 50,000। सी मेरे पास बच रहा है 13,98,000, लेकिन मुझे पेमेंट कितना कितना करना है? पेमेंट मुझे करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का करना है, विच इज 18 lakhs, प्लस शॉर्टफॉल भी करना है, शॉर्टफॉल भी करना है, विच इज 30,000। So and plus my commission which I have not calculated it, जिसके ऊपर अभी फिलहाल बड़ा सा क्वेश्चन मांगी। ये सब ऐड करूंगी तो मेरा 90। इसका मतलब दिस टाइम आई हैव नॉट हैविंग अ एक्सेस मनी। सो चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। यहाँ पे 23 लैक्स 20,000 होना चाहिए था, बिकॉज मैंने अनसिक्योर ये वाला लिया ही नहीं था। सिक्योर क्रेडिटर्स का एसेट रियलाइज अलग से दिया था। तो 23 लैक्स 20,000 इंटू 2.5%, इट इज कमिंग टू 58 लैक्स। नाउ स्टूडेंट सी, मेरे पास कितना पैसा बचा है? आई हैव लेफ्ट आउट विद ओनली 13,98,000। एम आई करेक्ट? इसमें से मैं अपना वो भी माइनस कर लेती हूँ। एक कमीशन तो मैंने कैलकुलेट किया है, विच इज़ 58,000। तो अब मेरे पास कितना बच रहा है? 13 लैक्स 98,000 माइनस 58,000 प्लस सी। आपको क्या बोला है? कमीशन इज इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी 50,000 दे दिया है ना। सो आई थिंक उसका भी कमीशन मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कमीशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके। कमीशन ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है? 50,000 इंटू 2%, विच इज इक्वल टू, यस, कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 2%, विच इज कमिंग टू 1,000। सो ये मेरा 1,000 आ जाएगा। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू माइनस 1,000 विच इज इक्वल टू, अब मेरे पास कितना पैसा बच रहा है? मेरे पास पैसे बच रहे हैं, यस, 13,98,000 माइनस 58,000 माइनस 1,000, which is equal to 13,39,000. This 13,39,000 is including 18 lakhs plus shortfall plus commission. Am I correct? So what we can say, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, याद है क्या बोला था? Let payment to unsecured creditors be 100. Therefore, commission will
So commission will be 2 rupees because 2% on 100 rupees is 2 rupees. So now total of this will be, ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 102 रुपीज आ जाएगा. बराबर है कि नहीं सर? करेक्ट. सो अब देखो, व्हेन 102 रुपीज है, सो कमीशन कितना है मेरा, 2 रुपीज. अब मेरे पास कितना पैसा है, मैंने आपको बोला टोटल बचा हुआ पैसा इंक्लूडिंग माय कमीशन, इट इज हाउ मच, कितना बोला, 13,39,000. सो मेरे पास है अभी फिलहाल 13,39,000. सो हाउ मच विल बी माय कमीशन, हाउ मच विल बी माय कमीशन. आपको मैंने ये पहले भी बताया. व्हाट विल बी माय कमीशन, यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो क्या आ जाएगा आपका, 13,39,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 102. सो देखो आपका कमीशन कितना आ रहा है, 13,39,000 multiply by 2 divide by 102. So the commission is coming to 26 lakhs 255 rupees. How much commission is coming to, 26,255. गलती से मैंने lakhs बोला. It is coming to 26,255. So now tell me what will be your total commission. So my total commission will be, yes, now commission कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया, कितना बोला मैंने आपको, 26,255. अब ये सबको ऐड कर लो, सो दैट विल बी माय टोटल कमीशन. यस, ऐड करने के बाद माय कमीशन इज कमिंग टू, यस, सो वेयर इज अ कैलकुलेटर. यस, कमीशन विल कम टू 58,000 plus 1,000 plus 26,255. So the total commission is coming to 85255. The commission is 85255. Now see, इस बार आपका कमीशन was again a different. आपने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया. एंड आई थिंक यू नो इट. मैंने आपको ये आगे भी समझाया है, ये कुछ नया नहीं है. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, हमने इसके पहले भी किया है. सो माय कमीशन इज कमिंग टू हाउ मच, 85255. ओके, नाउ वॉट एवर बच गया है वो हमें देना है. सो 20,58,000 यहाँ पे भी आएगा, 20,58,000. बचा कुचा पैसा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग 30,000 सिक्योर. बिकॉज एक बार जो होता है ना, अगर वो हम सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाते, इट बिकम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. 85255 माइनस 10,000 माइनस 6 lakhs माइनस 50,000. दैट कम्स टू, अरे कुछ गलत हो गया, 20,58,000 माइनस 85255 माइनस 10,000 माइनस 1 2 3 4 5 6, यस 6. अगेन कुछ मिस्टेक हो गया. 20,58,000 माइनस 85255 माइनस 10,000 माइनस 6 1 2 3 4 5 माइनस 50,000. 6 lakhs में ही प्रॉब्लम आ रहा था. दैट कम्स टू 13,15,412. 412 कैसे आएगा, इधर 5 है तो क्या कर रही हूँ मैं.
Why I'm getting so much of my calculation mistake today? 20,000, 20 lakh 58,000 minus 85255 minus 10,000 minus 6 1 2 3 4 5 minus 50,000. That comes to 13 lakhs 12,725. That comes to 13 lakhs 12,725. लेट मी चेक, अदरवाइज मैं लिखने में हमेशा मिस्टेक करती. 1 3 1 2 1, देखो 4 5 है, 4 5. ओके, सो दिस इज बाय unsecured creditors including secured creditors shortfall. शॉर्टफॉल 30,000. ओके बच्चों, मतलब ये जो इंक्लूडिंग ये हो गया, बिकॉज वंस you are not able to get the full money, the secure creditors becomes unsecured creditors. so इस बार ये चीज नहीं थी, और क्रेडिटर्स को भी हमारे पास पैसे ही नहीं थे तो हमने कम दिए. ओके, so by this I complete my last chapter. Thank you. Only one chapter is left out. Very soon I'll going to complete that, and then the portion is over, and most probably when your exams date are. Okay, chalo, take care, bye.